stays out with the turkeys and the sheep and gets along fine. He cannot get along in there, so. It takes 2 hours to heat up the stove. From kindling to cooking temperature, it takes 2 hours. और सब कैसा है? I really hope कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। अभी बैठा हूँ 150 साल पुराने एक फार्म पे, जो कि जिसका नाम है नैश फार्म, जो ग्रेप वाइन में है यूएस में। और इन्होंने इनकी जो हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इसी से मोटिवेटेड यहाँ के आज के फार्म जो होते हैं वो होते हैं। तो फार्म हाउस, ओवरऑल फार्म जो लैंड था वो सब कुछ इन्होंने प्रिजर्व किया है। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि जो यूएस में खेती का जो कल्चर है वो कैसा था और कैसे इनके फार्म हाउस हुआ करते थे। एक एक पुरानी चीज़ पे गौर करते हैं। तो चलते हैं और फार्म हाउस देखते हैं। तो बाहर से फार्म कुछ इस तरह का दिखता है फार्म हाउस। 1859 1858 के टाइम का बना हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 160-165 साल पुराना। साइड में पूरा फार्म है, दोनों साइड वुड कटिंग और उसके काम हो रहे हैं। और ये जो फार्म हाउस है वो कैसा है, तो यहाँ से एंट्रेंस है। वाओ, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं 100-150 साल पीछे आ गया हूँ। कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, सब कुछ उन्होंने पुराने जैसे ही रखा हुआ है। तो फार्म हाउस कुछ इस तरह के होते थे। ये उनका जो बेडरूम है फर्स्ट एंट्री पे वो है। चिमनी है ऑफ कोर्स। और ये जो चेयर्स हैं जो मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, काफ़ी पॉपुलर उस तरह की चेयर है। ये बेड पुराना। तो 150 साल पहले भी इस तरीके फार्म हाउस वो लोग में रहते थे। और मतलब इतना रिच जो है वो यूएस हुआ करता था उस टाइम पे भी, जब 150 साल पहले भी उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ थी कि पूरे घर और लाइक ठंड से बचने के लिए क्लोथिंग और सब कुछ उनके पास फैसिलिटी हुआ करती थी। संदूक पुराना। और ये दवाई गोलियां, आई थिंक टॉनिक, साबुन, ये सब रखा हुआ है नहाने के लिए। शू रैक एंड ऑल। तो कैप्स पहनने के शौकीन हुआ करते थे लोग। और इसी एंट्री के बाद एक साइड रूम, एक तरफ जो किचन है सामने वो ये है। सो डाइनिंग के लिए ऑलमोस्ट 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था। और किचन देखिए कितना ओल्ड है। So this is a wood burner, right? Yes, it's a wood burning stove. So गैस से स्टोव नहीं चलता था, तो वुड का बर्निंग का स्टोव है। एंड इट हैज चिमनी एंड ऑल दीज आर लाइक यूज्ड टू बी लाइक दिस इन द ओल्डन डेज। Yes, sir. वाओ। सो ऐसा वुड बर्निंग स्टोव हुआ करता था इनके पास। जो हमारे यहाँ चूल्हा होता था खेतों पे, उसकी जगह पे ये होता था यहाँ पे। यहाँ पे आप वुड डालें। वाओ, दिस इज हैवी। Yeah, your trays would go on this side, and the fire would go over here, and you could control your fire would go down there, and the closer you were to the fire, the hotter it would be, and the farther you were, the colder it would be, or less hot. So that's how you get your temperature control. Nice. So if I'm cooking like here, it's going to be hotter, and then there. So no control, but without control, there is a control. Wow. Because you can't really like turn down a knob. Of course. It takes 2 hours to heat up the stove. From kindling to cooking temperature, it takes 2 hours. And wow, is it still working? Yes, we use it for demonstrations and such. Nice. And all these are like really old utensils and everything? Yes, we've got our coffee grinders over here. Maybe new to you. Yeah. Regular things like spatulas and spoons. So in India, jars. in India we used to have groundnut, you know, the groundnut peanuts. Oh. Yeah. So my mother used to crush peanuts in something like this. Oh,
Oh, when I was that's a little cool. kid. Now it's all gone, but she used to crush peanuts in one of these kind of devices. Oh, that's cool. Yeah, and that's not like very fast. It was like 20 years or even like 15 years back. Yeah. That used to be pretty popular. Oh, for sure. Yeah, and then rolling pin is still popular in India. We Oh, of still course, use rolling yeah. pins. I do as well, like when I make pasta at home, just like pans, metal things, trays. Uh-huh. A lot is stayed the same. Yeah. Or like all these. Yeah, just like pots for if you want to make coffee and things. Mm-hmm. Nice. And this is also older? Yes. And do they used to have bulbs that time or no? It was all I think these. it was, yeah, they had oil lamps. Uh-huh. It took a bit later for electricity to meet the Nashes. When this was built in 1859. 69. 69. Okay. Yes. 1869. Wow. That's beautiful. Thank you. तो स्टोव हमने देखा, उन्होंने बताया कि 6 उसमें जो ब्लॉक्स है जहाँ पे आप कुक करते हैं, तो दूर जाएंगे फायर से तो उतना आपको कम टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि कंट्रोल नहीं था। तो वैसे उस स्टोव को कंट्रोल किया जाता था। हमारे यहाँ तो सिंगल चूल्हा होता था जिसमें आँच आती थी और हम बनाते थे खाना। वो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा ही होगा। पर यहाँ पे उसका जो मॉडर्न रूप था 150 साल पहले, वो इस तरह का चल रहा था कि वुड बर्निंग स्टोव। उन्होंने बताया 2 घंटे लगते थे इसको उस टेम्परेचर पर आने पे। आफ्टर 2 आवर्स विल बी एबल टू कुक। और अभी भी क्विकी सी नॉइस है इनके जो फ्लोर है उसमें, जो काफ़ी पुरानी जो इमारतें होती हैं उनसे आती है। और ब्रूम्स एंड ऑल। तो फार्म हाउस पे ये झाड़ू और ये सब रखा करते थे ये लोग। ये संदूक आपने बहुत पॉपुलर मूवीज में देखा होगा, वो रखा हुआ है। तो ये कई बार जो ओल्ड टेक्सन मूवीज होती है उसमें दिखाया जाता है, उस तरह का संदूक है। और यहाँ हम देखते हैं इनका लिविंग रूम टाइप की स्पेस है। तो उधर बेडरूम, किचन और यहाँ पे बैठने वगैरह की जो स्पेस होती थी वो कुछ ऐसी होती थी। सोफ़ा है, बैठने की टेबल, कुर्सी और एक चाय वाय पीने की जो हाई टी टाइप का सेट है वो है। ब्यूटीफुल। और डबल स्टोरी है, तो ऊपर भी कुछ है, वो भी देख के आते हैं। चढ़ते ही एक खटिया टाइप का है। इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी आज देखने को नहीं मिलती। इवन इंडिया में भी आजकल काफ़ी अनकॉमन हो गया है, पर यहाँ तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। ऊपर एक बेडरूम है एंट्री करते ही, जिस पे चेकर्स रखा हुआ है और बेड एंड ऑल। तो ये जो रूम है अभी भी मुझे मतलब जो आजकल अमेरिका में ट्रेंड है, या मैंने इंडिया में भी यही ट्रेंड आ रहा है कि बच्चों को अलग से एक रूम मिलता है खेलने के लिए, जिसको प्ले रूम बोलते हैं बच्चों का, या एक बच्चों का रूम होता है स्पेशली उस टाइप का रूम है, टॉय रूम टाइप का, कि खेलने की चीज़ें रखी हुई हैं पुरानी बच्चों के लिए। और लग रहा है कि किसी बच्चे का कमरा है। चेकर्स रखा है। एक रूम पीछे था, एक रूम इस साइड है। ये देख के ऐसा लग रहा है कि जो लेडीज़ होती हैं उनका कमरा है, क्योंकि सिलाई मशीन रखी है। ये तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक है। मेरे घर में सिलाई मशीन हुआ करती थी और मम्मी हमारी सिलाई काफ़ी करती थी, बहुत सिलाई करती थी। तो सिलाई मशीन सामने रखी है, बिल्कुल इसी तरह की एक सिलाई मशीन होती थी हमारे घर में, पैर से चलने वाली। ये यूएस में मुझे लगता नहीं था कि कहीं देखने को मिलेगी, पर यहाँ देखने को मिल रही है, उतनी पुरानी। और ऊन के गट्टे हैं जो स्वेटर बुना करते थे। ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इंडिया में भी आजकल नहीं मिलती है चीज़ें देखने को ज़्यादातर, क्योंकि सब लोग रेडीमेड कपड़े वगैरह पहनते हैं। बट ऊन के गट्टे रखे सामने। सो उन्होंने बोला कि बार्न हाउस है आपका, जो स्टोर है बार्न का वो है। चिकन्स हैं जहाँ पे पोल्ट्री वगैरह का काम वो करते थे, और है स्टैक्स एंड ऑल जो कैटल्स को खिलाने के लिए फीडिंग वो सब है, तो वो सब देखते हैं। ये पूरा फार्म हाउस के आसपास इन्होंने बना रखा है। ये देखिए ओपन में चिकन बांग देते हुए। तो यहाँ पे वो लोग चिकन वगैरह रखते हैं, एग्स एंड ऑल। उनको पानी वगैरह पिला रहे हैं। और यहाँ पे चिकन्स जो हैं वो एग्स देती हैं, तो पूरा फार्म फील है। हाय, why this one's only out? He is a bully, and so when you put him in there, he starts fighting with all of them. Oh. So he usually stays out with the turkeys and the sheep and gets along fine. Uh-huh. He cannot get along in there, so. But not like only to them, not to us. Right, yeah, he's fine with us. He just fights them.
That's Yeah. funny. And do you like sheeps are also there? Oh, the sheep he gets along fine with. He gets Uh-huh. along fine with the turkey. Okay. Even the tom turkey and he get along. But not them. But he just doesn't get along in there. And that's why they're like, get away. You're not coming in here because he fights. But you know what? I need to, well, I'll leave that bucket there for a minute. You Okay. can keep getting your head in there and all. That's funny. Yeah. तो वो बता रही हैं कि वो जो एक मुर्गा है वो बाकी मुर्गों के साथ नहीं जमती उसकी, इसलिए उसको बाहर रख रखा है। और बोल रही है कि भेड़ के साथ, बड़ी मुर्गियों के साथ, सबके साथ जमती है, बस उसकी बाकी मुर्गों के साथ नहीं जमती उस फार्म में। तो ये शायद इनका बान है जिसको बान बोलते हैं ये, जहाँ पे। एंड व्हाट इज दिस? That is that wagon, it's a Conestoga wagon, and it would have like the cover over it. Oh yeah. So And that was what do you how- call this? Like a barn? Oh, this is the barn. Barn, yes. okay. And it was built around 1900, Whoa. and so it has like their tractor storage stuff over Uh-huh. here. This is the feed room for the animals. And by 1900 they had electricity or no? No, not yet. No. Okay. And- But tractors were there. Well, The wagons. I say yeah, Yeah. wagon like Yes. plows and stuff. Sure. So this is where they would have kept that, and then there's Mhm. a tack room where they would have kept their tools. This is the corn crib up here on this side where they would have put their crops. Crops. Okay. And then this would have been the feed area and then the hay area. Nice. तो जो फैमिली है वो पहली बार जब आई थी उन्होंने बताया कि 150 साल पहले वो इस वैगन में बैठ के आए थे केंटकी से। सो इतना दूर से वो ट्रैवल करके इस वैगन में बैठ के और पहुँचे थे यहाँ पे जब उन्होंने ये बसाया पूरा। तो इसमें सारी फैसिलिटी, ये बान जैसा मैंने आपको बोला ये बान है, तो बान में उनके पास क्रॉप्स रखने की, वैगन पार्क करने की, जो जानवर है उनको बांधने की पूरी व्यवस्था है। सो एक साइड घर है, एक साइड बान है, चिकन का हाउस, इस तरह से पूरा अरेंजमेंट है काफ़ी बड़े लैंड पे। और भेड़ें वगैरह जो है वो बांध रखी हैं उन्होंने। सो यहाँ पे भेड़ है, छोटा सा भेड़ का बच्चा भी है नीचे, बहुत आज ही उन्होंने बताया कि अभी जन्म हुआ है उसका आज ही। सो आई डोंट नो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि नहीं, पर बहुत ही छोटा सा है। और ये एक और वैगन, सो बेसिकली दो घोड़े, आई थिंक घोड़ों से चलने वाली है, एक वैगन है तो उस तरह की हैं। तो इधर भेड़ बकरी वगैरह रखने की जगह, क्रॉप्स रखने की जगह, और पीछे और भी जगह है जहाँ पे वो बाकी अपने जो कृषि के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रखते थे, जैसे जो हमारे यहाँ हल और वो सब होता था, पानी डालने की मशीन्स या ये सब। ट्रैक्टर भी उनके पास था एक टाइम तक, तो वो सब रखा है उन्होंने। और ये बांध जो हमने अभी देखा, ये उन्होंने बताया कि 1900 में बिल्ड हुआ है, तो 120 साल पुराना है जब उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। और 120 साल में जितना भी फार्मिंग में रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो मशीन्स वगैरह आई वो सब यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल 150 साल में जितनी भी मशीन्स आई हैं फार्मिंग से रिलेटेड, वो सभी यहाँ रखी हुई हैं, एक के बाद एक आती गई। और हार्वेस्टर, क्रॉप कटर्स, उस तरह की जितनी भी मशीन्स हैं वो सब रखी हैं। देखिए कितना पुराना ट्रैक्टर है, एक 3 पहिए वाला। तो 3 पहिए का डिज़ाइन ये तो मैंने भी कभी नहीं देखा था। और यूएस में ट्रैक्टर्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं, काफ़ी एडवांस आते हैं, पर अभी यहाँ जो वो ट्रैक्टर चला रहे हैं वो काफ़ी पुराना है। और ये गन्ने के रस की मशीन जैसे दिख रही है, पर आई थिंक ये है या कुछ काटने की मशीन है, ऐसा हमारे यहाँ पे भी खेतों में दिखती है, पुरानी ये मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं उस तरह की मशीन है। हंसिया, और ये बैठ के चलने वाली। फार्म का एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है, और इन्होंने कुछ उगा भी रखा है सामने की साइड, खेती में कुछ उगा के रखा है। तो मैं पूछता हूँ कि वहाँ क्या कर रहे हैं, क्या उग रहा है। और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएस में कपड़े बाहर सुखाना अलाउड नहीं है, पर फार्म पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो इसलिए इन्होंने फार्म पे पीछे कपड़े सुखाने के लिए वायर्स वगैरह लटका रखे हैं। और सनलाइट में कपड़े वगैरह सुखाते हैं, क्लीनिंग के कपड़े एंड ऑल। तो ये भी पुराने टाइम्स की जो है याद दिलाता है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ फसल वगैरह बो रखी है पीछे फार्म पे, और काक भगोड़े जिसको स्कैरक्रो बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी लगा रखे हैं, जो हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है खेतों में।
और यहाँ पे मैंने इन जनरल नहीं देखे, पर अब क्योंकि मैं इतना दूर फार्म पे आया हूँ और उसको जो पुराना फार्म पोर्ट्रेयल है वो हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वो सब लगे हुए हैं और कुछ खेती यहाँ पे हो रही है। हमने खेत देखा था वहाँ पे वीट और कॉटन, जो कि काफ़ी बड़ा एक प्रोड्यूसर था एक टाइम पे, वो उगा के रखा हुआ है उन्होंने, जिसको कमर्शियली वो सेल करते थे। और साइड में जो घर के गार्डन है छोटा, आलू, पत्ता गोभी, जो सब्जियां हैं बेसिकली, वो उगाई जाती थी ताकि घर का काम चल सके और बाहर का काम सेल करके चल सके। तो इस तरह का अरेंजमेंट इस पूरे लैंड पे हुआ करता था। तो हमने जो 150 साल पुराना फार्म हाउस है वो देखा, कैसे उन्होंने सारी चीज़ें अरेंज कर रखी थी, वो भी देखा कि क्या वो उगाते थे और घर कैसे चलता था, पुराना घर जो उसका एक्सपीरियंस था वो भी देखा। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि कैसे अमेरिका में जो खेती और वो होती थी पुरानी, वो कैसी किया करते थे लोग। Hey, thank you so much for all the information. You're very welcome. Yeah, I got more info about like the crops and all. So do you guys sell the crops as well? I The don't one that think we do. you do not. Not But to it's my just knowledge. it's just for the demonstration purposes. Yes, sir. Awesome. तो अब मैं निकलता हूँ घर की ओर, पर आई होप आपको ओवरऑल वीडियो पसंद आया हो, फार्म लाइफ यहाँ पे कैसी हुआ करती थी उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।